Hello and welcome to a poetry session. Dear students, today I am here with a poem from your Hornbill textbook of English, grade 11, a CBSE course. Now this poem has a title, The Laburnum Top. It is a poem that has been written by Ted Hughes. And my dear friends and students, I shall begin with an introduction to the poem, to the poet. We shall recite the poem. Also, we shall look at the style, the theme, the explanation, the vocabulary, summary, poetic devices, and the rest, that is the question and answers, etc. So dear students, let's quickly have an introduction. Now the book, Hornbill, an NCERT book, grade 11, chapter 3, the poem's title, The Laburnum Top. The poet is Ted Hughes. Now, the poem, The Laburnum Top, is written by Ted Hughes. It is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. नाउ हमारी पोएम का जो टाइटल है द लैबर्नम टॉप. लैबर्नम एक पेड़ है जिस पे पीले रंग के फूल आते हैं. ओके और इनके जो पोइट है जिन्होंने लिखी है ये पोएम, उनका नाम है टेड ह्यूज. ये एक रिश्ता दिखाता है जो कि एक पेड़ और एक छोटी सी चिड़िया गोल्डफिंच के दरमियान है. ये पेड़ येलो कलर का है, बिल्कुल चुपचाप, मतलब साइलेंट एंड डेथ लाइक, जैसे वो जीवित ही नहीं है, जैसे उसमें जान ही नहीं है. लेकिन it is made alive by the bird and her young ones. The yellow bird has her shelter on the tree where she feeds her young ones. वो पेड़ बिल्कुल चुपचाप था, जैसे जीवित ही नहीं है, लेकिन इस चिड़िया के आने पर वो पेड़ जीवित हो गया, उसमें जान आ गई. ये छोटी सी येलो कलर की चिड़िया उसमें अपना घर बनाती है, मतलब अपना घोंसला बनाती है और अपने छोटे बच्चों को खिलाती है, फीड्स. लेकिन as soon as the bird leaves to fly in the sky, the tree becomes silent and death-like again. जब वो चिड़िया उस पेड़ पे से उड़ जाती है, आसमान में चली जाती है, मतलब पेड़ को छोड़ के चली जाती है, दोबारा वो उसी तरह बिल्कुल चुपचाप, जैसे उसमें जान ही नहीं है, ऐसा बन जाता है. यह है हमारी गोल्डफिंच बर्ड. आप देख सकते हैं येलो कलर की छोटी सी बहुत ही प्यारी चिड़िया है. नाउ लेट्स लुक एट द पोएट, द ऑथर और द पोएट. Edward James Hughes was born on the 17th of August 1930 and expired on the 28th of October 1998. He was an English poet, a translator and children's writer. Critics frequently rank him as one of the best poets of his generation and one of the 20th century's greatest writers. He served as poet laureate from 1984 until his death. एडवर्ड जेम्स ह्यूज इनका पूरा नाम था, ठीक है. इनकी डेट ऑफ बर्थ है एंड डेट ऑफ डेथ. ये इंग्लिश पोइट थे, ट्रांसलेशन करते थे एंड ज़्यादातर चिल्ड्रंस पोएम्स लिखते थे, मतलब चिल्ड्रन से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, एनिमल से भी रिलेटेड ये काफ़ी पोएम्स लिखते थे. एंड ये 20th सेंचुरी के अमॉन्गस्ट ग्रेटेस्ट राइटर्स थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल डू इज सी द स्टाइल एंड द थीम ऑफ द पोएम. The style, it is a free verse that is free from any limitations of rhyme or regular meter. जब हम पोएम पढ़ेंगे आप देखना कि उसमें कोई राइमिंग नहीं है, ठीक है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस के बाद अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस या लाइन देखते हैं तो लास्ट वर्ड राइम नहीं करता, मतलब कि ये फ्री वर्सेस हैं. That is the style. And the theme, it is a poem of autumn weather about a tree, the laburnum, that was standing still until the arrival of the chirping little goldfinch bird and her young ones. इसको अगर हम इमेजिन करेंगे तो ये एक पेड़ है लैबर्नम, ठीक है. ये गोल्डन शॉवर भी इसे कहते हैं क्योंकि इस पे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं. ये बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है, ठीक है. एज हमने स्टार्टिंग में कहा था, जैसे इसमें जान ही नहीं है, लेकिन ये जीवित हो जाता है एक छोटी सी चिरपिंग, ठीक है.
एक छोटी सी chirruping little goldfinch के bird के आने पर. Now, let's look at the recitation of our poem. The Laburnum Top, or poet Ted Hughes. The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up, of chitterings and the tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She strokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face, identity, mask. Then, with eerie, delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Now let's look at the first stanza. The laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. Okay, in the above lines, ठीक है, यहाँ पर हम explanation देख रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा के. इसमें क्या है कि जो पोइट है वो हमें बता रहे हैं कि जो लेबर्नम ट्री है उसके जो पत्ते थे वो येलो होने लगे थे, सूखने लगे थे क्योंकि पतझड़ का मौसम था. The tree top is still and silent. Still, S-T-I-L-L. जब हम ये वर्ड बोलते हैं still, मतलब जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, बिल्कुल चुपचाप, ठीक है, and silent. सितंबर के महीने में बिल्कुल चुपचाप खड़ा था ये पेड़. ये पेड़ जो था इसके पत्ते पीले होने लगे थे, ठीक है, एंड ये ऐसा लगता था जैसे इसमें जान ही नहीं है. और इस पे जो है जो बीज थे वो सारे सूख कर गिर चुके थे. अब हमने इसमें जो वर्ड यूज किया है येलो, ओके, येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट. येलो symbolizes silence, death and beauty. He describes the whole scene of the tree with this color. अब ये जो येलो कलर है, ठीक है, यहाँ पर हमने लीव्स एंड सनलाइट का कलर येलो यूज किया है. और जो पोइट है वो ये भी डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो येलो कलर होता है इसका मतलब साइलेंस होता है, डेथ होती है एंड ब्यूटी होती है. ठीक है, सो 3 words आर डिस्क्राइबिंग इट हियर, साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी. नाउ लेट्स देन लुक एट द next stanza here. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. अब एक गोल्डफिंच बर्ड आती है, ठीक है, इस पेड़ पे जो बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ था. एंड देन ये सडनली एक चिरअप साउंड बनाती है. अब चिड़ियाँ जो बोलती हैं ना, उनकी जो वो आवाज़ होती है, हम उन्हें चीटरिंग बोलते हैं, ठीक है, चिटरिंग. एंड वो चिड़िया जो थी बहुत अलर्ट थी, बहुत प्रिकॉशियस थी, लाइक अ लीजर्ड. लीजर्ड एक स्पीशी होती है छिपकली की, थोड़ा बड़े साइज में होती है. ओके, सो वो पेड़ की शाखों पे बैठती है और जब वो हिलती है, उसके छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अपने परों को हिलाते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनसे वाइब्रेशन होती है जैसे एक मशीन स्टार्ट हो गई है. और जब वो चिड़िया और उसके छोटे बच्चे उस पेड़ पे हिलते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, चिरअप्स करते हैं, उस पेड़ में जान आ जाती है, थ्रिल, ठीक है, मतलब जोश आ जाता है, वो पेड़ खुश हो जाता है. The poet has given 2 opposite scenarios of the tree. हमारे पोइट ने इस लैबर्नम टॉप ट्री के बारे में 2 अलग अलग सीन्स दिखाए हैं, सिनेरियोज, ठीक है, मतलब सीन्स जिन्हें हम इमेजिन कर सकते हैं. पहला जो है, द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक एंड स्टिल. ओके, पहले तो जो पेड़ के बारे में हम बात करते हैं वो बिल्कुल स्टिल खड़ा होता है, चुपचाप, साइलेंट, डेथ लाइक. एंड जो दूसरा है, गिवन लाइफ एंड शेल्टर टू अ बर्ड एंड हर यंग वंस.
जो दूसरा सीन है वो ये होता है कि इस पेड़ में जान आ जाती है और वो एक चिड़िया को और उसके छोटे बच्चे को एक घर देता है रहने के लिए, मतलब चिड़िया जो अपना घोंसला बनाती है. ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकंड स्टैंजा. नाउ एंड वन थिंग मोर, ऑलवेज आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई पोएम पढ़ते हो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसमें उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बैठता है, तभी हमें पोएम में मजा आता है. ओके, सो स्टैंजा 3. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity. Now, this is the stanza 3 we have here. Let's see इसका explanation क्या है. The engine of her family. जो bird होती है गोल्ड फिंच, वो अपनी फैमिली की इंजन होती है, क्योंकि वो उन्हें फीड करती है, वो उनके लिए खाना प्रोवाइड करती है ना, सब कुछ वो ही करती है उनके लिए. वो येलो कलर की होती है और उसका जो फेस होता है उस पर डार्क कलर के स्ट्राइप्स होते हैं. ओके, सो देन विद ईयर डेलिकेट विसल चीयरअप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी. सो फाइनली जो एक गोल्डफिंच बर्ड होती है वो एक ब्रांच के एंड पे जाती है, एक स्वीट सी चिरपिंग साउंड बनाती है, ठीक है, and then flies away towards the infinite sky, and then वो दूर उड़ जाती है. और उसके बाद क्या होता है, जो लैबनम ट्री होता है वो दोबारा उसी तरह रह जाता है, अकेला चुपचाप खड़ा हुआ, जैसे उसमें जान ही नहीं है. ठीक है, सो नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द वोकैबुलरी चेक. वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है ताकि जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आए हैं आप उनका मतलब देखें, एंड जब आप उनका मतलब जान लोगे तो उसके बाद पोएम को समझना बहुत आसान होगा आपके लिए. सो लेट्स लुक एट द वोकैबुलरीज. Laburnum, a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. Laburnum जो होता है, ठीक है, वो एक पेड़ होता है, इंडिया में भी होता है, हम उसे इंडियन लैबर्नम भी कह सकते हैं. ओके, एंड हाइट में कम होता है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उस पर येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और उसके जो बीज होते हैं वो जहरीले होते हैं. गोल्डफिंच is small singing birds with yellow feathers on its wings. छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, येलो कलर की होती हैं. Twitching, sudden jerk movement. Jerk मतलब जो झटके लगते हैं, जैसे झटका. Chirrup, a bird making repeated high pitched sounds. ठीक है, जो चिड़ियों की आवाज़ होती है ना, लाइक बहुत बारीक बारीक आवाज़ होती है जो निकालती है, उसको हम chirrup कहते हैं. Startlement, a feeling or showing sudden shock. Suddenly कुछ हो जाता है, हम एकदम डर से जाते हैं, ठीक है, एक sudden shock की तरह, that is startlement. Abrupt, rapid, मतलब एकदम से, जल्दी. Chirrings, to make a chattering sound. Tremor of wings, involuntary vibration of the wings. विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं ना, तो जो चिड़ियाँ, जो छोटे बच्चे थे, ठीक है, उनके पर हिलते ही रहते हैं. आप कभी ऑब्जर्व करना, अगर आपको घोंसले में चिड़िया के बच्चे दिखें तो वो पर हिलाते रहते हैं अपने. ट्रिलिंग्स, टू प्रोड्यूस अ चिरपिंग साउंड. ट्रम्बल्स, टू शेक, ठीक है, कांपना या हिलना. थ्रिल्स, अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, जब बहुत खुशी होती है. सो वो पेड़ इतना खुश हो गया था जब वो चिड़िया उस पर रुकने आई, उस पर रहने आई अपने बच्चों के साथ. फ्लर्ट्स आउट, लीड ऑन टू, जब वो बाहर एक ब्रांच की तरफ बढ़ती है. स्टोक्स, टू एड fuel to the engine. Eerie, weird and strange, अजीब. Whistle, cheer up, that's gentle whisper like the chirping of the bird. Subsides, diminishes, that is like finish. That is how in the end, after the bird left the laburnum tree, it subsides again to its earlier condition, just standing still and